looking for Ajax request. Everyone got to know Ajax, how we are making the page request without refreshing the page. पहले क्या होता था कि जो HTML पेज होते थे वो सर्वर से रेंडर होते थे. हमारा ASP.NET हुआ, Java servlets वगैरह हुए. So what at that time you request, and the server used to process the HTML and it used to send the HTML. तो अगर हमारे पास we have a form, login form, then if we submit the login form, the whole processing used to be done at the server, and that returns the page to us. So that is what the concept previously. And then came AngularJS, and before that jQuery did a lot of help to developers, and they started looking into making most of the things into the front end. So browser में हम JavaScript run कर सकते हैं. So that was the advantage. jQuery library फिर हमने start किया jQuery library से यूज करके अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू वी यूज टू कॉल एपीआई फ्रॉम द ब्राउजर इटसेल्फ. हम डायरेक्टली कॉल करते थे, एंड देन इन द फॉर्म ऑफ ईदर जेसन और इट वुड बी एक्सएमएल, वी यूज टू गेट द डेटा एंड वी यूज टू अपडेट द यूआई बेस्ड ऑन दैट. सो हमारे पास एक लॉगिन पेज होता था. लॉगिन पेज में जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया, वी डोंट नीड टू गो टू सर्वर एंड refetch the whole HTML page. So we used to make the call through JavaScript, and we used to get all the details in form of JSON or XML, and then we used to get the data, and we used to refresh the page. So with the help of JavaScript, we can also create dynamic HTMLs. I mean, mostly that we used to create like document.get element by ID, document.create element. Those are the APIs in JavaScript through which we create the HTML in the browser itself, and we can change all the order of elements. We can introduce new elements. We can change the whole look and feel based on that. So after that came AngularJS. So AngularJS changed everything. So in AngularJS, the main concept was model view controller. So model view controller represents model means data. Controller means where we keep all the control, how to make the routes, how to make the API calls. What if we get the data? What would we do with that data? Those kind of things used to have in controller. And model and the view is the presenter. So that was the advantage. And in Angular, everything was separate. Like the people who want to work with data, they used to work with model. Those people who were good with business logics and all, coding and all, so they used to remain in controller. And then those people who are specific in design and all, they used to work in view. So that give us an advantage that we don't need all the logic inside the server. So now what happened, whenever there is a login page, we don't need to make an API call, or uh, in case of login page, we need to make API calls. But this is just an example. So if there is a, let's say, a cart. Okay, so if there is a cart, and we are adding an item to the cart, so we don't need to go back to the server and process the things that cart item count is increased to 1, and then from the server get the data that the count has been increased, and we should display that. So what happens that now in front end itself, we manipulate the whole thing in JavaScript, because only thing is changed in the cart is the count in the display. Actually, only thing is changed is the cart item gets added, and the cart count. But those things are already available in the page, right? We already have the product details, we already have the description and items count, we already have a price. So since we already have a price displaying in the page, why can't we calculate the same thing over here in the browser? Let's say we are adding three items, so three into the price. Why can't we calculate, and product is also available, description is also available? Why not to make the same thing in the browser?
to add the from here itself. Why not avoid the API call and let the user wait for a loading icon? So that was the thing we used to do in JavaScript. So that is what happened with Angular. Uh, 1 minute. 1 minute. Okay. Uh, so at that time, this was the थिंग कि हमें अगर किसी कार्ट में कोई आइटम हमें ऐड करना है तो प्रोडक्ट की डिटेल हमारे पास ऑलरेडी है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डेटा है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट काउंट है। सो सारा कुछ मेरे पास है, तो फिर हम क्यों सर्वर को अननेसेसरी एक रिक्वेस्ट भेजें और उसके लिए वेट करें, राइट? सो हम क्या करते थे, हम यहीं पे सारा बिजनेस लॉजिक डाल देते थे एंगुलर एंगुलर के थ्रू। यहीं पे सारा कैलकुलेशन होता था और इसी में सारे हम ऐड कर सकते थे। देन वी थॉट दैट कि हम एक पेज से दूसरे पेज हम नेविगेट भी क्यों कर रहे हैं, जब हम सारा काम यहीं पे कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कि हम अभी फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पेज में हैं। अब प्रोडक्ट पेज में हमने एक ऐड किया आइटम, और हम उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही सबमिट क्लिक कर रहे हैं तो ये सर्वर को जा रहा है, एंड देन कार्ट, हम वापस कार्ट में जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने कार्ट आइकन पे जैसे ही क्लिक किया, वो सर्वर को जा रहा है, नया पेज लेके आ रहा है। तो हम वो क्यों करें, हम यहीं पे सारा पेज क्यों ना बिल्ड कर दें, बिकॉज हम तो HTML यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा में मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं यहीं पे, एंड देन स्टाइल भी हम ऐड कर सकते हैं ब्राउज़र में ही। तो फिर हम सर्वर में क्यों जाएँ? तो देन देन द कांसेप्ट केम SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता था, हमने सिर्फ ब्राउज़र में एक पेज लोड किया, अब हम बार-बार वो पेज रीलोड नहीं कर रहे हैं, हम इसी में नेविगेट कर रहे हैं। ओके, सो ये एंगुलर में था। देन around 2000 2012-13, Facebook came with an idea that why not we should come with small components। जो भी पेज हमारा है, से फॉर एग्जांपल ये वाला पेज, ठीक है, या लेट्स से ये वाला पेज, ठीक है। तो इन इन पेज में आखिर है क्या हमारे पास, ये लिंक्स हैं, राइट? और ये बटन है, ये हीरो है, एंड देन ये लोगो है, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स वगैरह हैं। तो तो हम एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये जो लिंक्स हैं, ये सारे सेम हैं, इनका बिहेवियर भी सेम है। जब हम इस पे एच ओवर करते हैं तो ये कलर चेंज हो रहा है, इनके अलाइनमेंट, इनका फॉन्ट साइज, सब कुछ सेम है। तो हम क्यों ना एक प्लेट बनाएं और यही से रिपीट करें, ठीक है? अब दूसरी बात ये हुई कि अगर हमने एक टेम्पलेट बनाया और यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, और यही चीज अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें अलग से फिर से इन्हें ना बनाना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हुआ क्या, कि इस पर्टिकुलर पेज को, जो जो भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, इस पर्टिकुलर पेज को हम डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। जैसे ये हमारा एक छोटा सा कंपोनेंट हो गया, अ, एक लिंक, ठीक है। तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा, हम एक,
हेलो। हाँ भाई। या हाँ, सॉरी, देयर इज अ नेटवर्क इशू। मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। yes. ओके, लेट मी नो इफ स्क्रीन इज देयर विजिबल। Yeah, visible. सभी को दिख रहा है? Yes, yes. ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं था यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं डोम से, ये क्या कर रहा है, ये इस जो पेज का स्टाइल है वो भी मेंटेन कर रहा है, हाइट विड्थ सारे कुछ कैलकुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम वो चेंजेस करते हैं, ये पहले स्टाइल्स भी कैलकुलेट करता है, पोजीशन हाइट विड्थ भी कैलकुलेट करता है एलिमेंट की, और वो पूरे ट्री को फिर से वो रिफ्रेश करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ट्री को रीड करने में, नेविगेट करने में, हमने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि हमें टाइम लगता है। हमने उसका बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो, हमने सब कुछ पढ़ा है, राइट। तो तो इन द सेम वे यहाँ पे भी हमें टाइम लगता है। तो इससे क्या होता है, किसी किसी केस में अगर ये काफी बड़ा चेंज हो तो वो टाइम लगता है, एंड देन user will face a little bit difficulty, or we can say that the UX would not be that great, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, रिएक्ट जो है, रिएक्ट ने किया एक वर्चुअल डोम बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते थे जेक्वेरी में अगर हम देखेंगे तो हम जेक्वेरी में हम एक क्वेरी कैसे करते थे, हमने अगर इन्हें किया है तो हम क्या करते हैं, कोई मॉडल पॉपअप है, ठीक है। तो मॉडल पॉपअप को हमें शो कराना है, तो हम क्या करते हैं, एक बटन है, ठीक है, शो मॉडल डॉट क्लिक पे हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन लिखा है, और इस फंक्शन में हमने लिखा है कि जो मॉडल पॉपअप है वो हमें शो करे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा मॉडल पॉपअप का एक बैकग्राउंड भी है, वो भी शो करे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी पोजीशन भी हमें सेट करनी है, तो हमने क्या किया, इसकी पोजीशन भी हमने सेट कर दी, मॉडल। तो एक हमने क्लास बनाया था, हमने वो क्लास, उस क्लास में हमने रखा था कि जो मॉडल है उसका पोजीशन हम सेट कर देंगे मिडिल मिडिल ऑफ द स्क्रीन में, ठीक है। तो हम jQuery में क्या कर रहे हैं, हम ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, बट फिर क्या होता है कि ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, या फिर हम जावास्क्रिप्ट में भी अगर हम इसे लिखें, तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली डोम में मैनिपुलेट करेगा। तो पहले पहले ये क्या करेगा, ये ये मॉडल रैपर को ढूंढेगा पूरे ट्री में, एंड देन वहां से वो उसे उसकी विजिबिलिटी शो करेगा, ऐड कर देगा उस नोड को। अब वो नोड ऐड हुआ और पूरा ट्री रिफ्रेश हुआ, उसके साथ स्टाइल चेंजेस हुए, ठीक है। हाइट विड्थ कैलकुलेट हुआ, और बाकी बाकी एलिमेंट्स भी अपने अपने पोजीशन उन्होंने एडजस्ट किया, ठीक है। देन सेकेंड लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, सेम प्रोसेस, पूरा ट्री अपडेट हुआ, एंड देन सब कुछ वहां पे चेंज हुआ।
एंड थर्ड लाइन भी यही हुआ। तो इस केस में क्या होता है कि आपने इतने टाइम आपने वहां पे चेंज किया ट्री में, तो ये सारी प्रोसेस होती है। अब वर्चुअल डोम में क्या होता है, वर्चुअल डोम में ये एक शैडो ट्री बनाता है उसका। जो हमारी ट्री बनती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये उसकी एक ट्रू कॉपी बनाता है और मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब रिएक्ट में जो भी चेंजेस होंगे से हमने यही सारे ऑपरेशंस हमने वहाँ पे लिखे हैं। एक मॉडल रेपर को शो करो एंड देन क्लासेस ऐड करो। तो ये सारे क्या होते हैं, वो शैडो ट्री में, वो वर्चुअल डोम में वो अपडेट होते हैं। तो ये जो ट्री है, इन मेमोरी ट्री जो हम चेंजेस करते हैं, वो फास्ट होता है रादर देन डोम डायरेक्टली हम जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी में उसे स्टाइल वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे अपडेट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, ये तीनों अपडेट जैसे ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपने ट्री में, ठीक है, देन वो इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ कंपेयर करते हैं, इस वर्चुअल डोम के चेंजेस को। अब उन्हें चेंज मिला, देन वो फिर वो रिप्लेस करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट्स से इतने सारे जो ऑपरेशंस हैं, इतने टाइम्स वो रिपीटेड टाइम्स वो ट्री अपडेट कर रहा है एंड देन स्टाइल्स मैनेज कर रहा है, वो सारे को हमने रिड्यूस करके क्या कर दिया, एक वन टाइम चेंज कर दिया कि आप सारे ट्री में चेंजेस करो एंड देन फाइनल हो जाए, देन आप वर्चुअल डोम में, सॉरी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आप इसे रिप्लेस करो। तब फिर वापस वो स्टाइल्स कैलकुलेट करेगा, सभी को एडजस्ट करेगा। तो वो वाली जो प्रोसेस है वो उसने इसे रिड्यूस कर दिया। तो ये कंसेप्ट आया वर्चुअल डोम के थ्रू। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी रिएक्ट की बात उठती है तो रिएक्ट इज मोर परफॉर्मेंट देन एंगुलर जेएस, मोर परफॉर्मेंट देन एंगुलर, देन मोर परफॉर्मेंट देन जे क्वेरी। तो इस तरह से आप सुनोगे जब भी आप रिएक्ट में काम करोगे। तो इसका रीजन यही था कि हम क्या करते हैं, हम जो भी अपडेट करते हैं वो हमारा वर्चुअल डोम में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिएक्ट का। और दूसरा है कि कंपोनेंट्स, वो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं एंड उन कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आप अगर कि पूरे सिस्टम से आप आइसोलेटेड होते हो, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो भी चेंजेस है वो आपने किए, या आपके साथ जो भी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में काम कर रहा है, एंड देन यू जस्ट प्लग्ड इन। तो ये एक प्लग इन प्ले वाला सिस्टम हम तैयार करते हैं थ्रू रिएक्ट। ठीक है, तो रिएक्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक लाइब्रेरी है क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप इज अ स्टार्टर। तो ये एक बनी बनाई लाइब्रेरी है। आप क्रिएट न्यू, जो भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन आप बनाते हो, तो आपको फ्रॉम द बेस यू डोंट नीड टू सेट अप द होल रिएक्ट एप्लीकेशन, कि आप रिएक्ट के फाइल्स इनिशियलाइज करो, इनिशियल सब कुछ करो। तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गेट दिस क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन यू इंस्टॉल इट। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल ग्लोबल क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब हम
हम एक नया ऐप बनाते हैं। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप है यहाँ। तो जैसे ही हम ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये रिएक्ट रिएक्ट डोम और जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो ऐड करने लगता है। तो अगर आपने पहले किसी नोड रिलेटेड प्रोजेक्ट या किसी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि हम नोड नोड पैकेज मैनेजर यूज करते हैं, एनपीएम मॉड्यूल्स यूज करते हैं एंगुलर्स के लिए भी, और Yes. व्यू जेएस में अगर किसी को एक्सपोजर होगा तो इस तरह से हम जो भी नोड एप्लीकेशन बनाते हैं हम उसमें एनपीएम पैकेजेस के थ्रू हम यूज करते हैं। तो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप भी इसी तरह से एनपीएम पैकेज पे ही काम करता है। तो हमें क्या करना होता है, रिएक्ट के लिए रिएक्ट के पैकेजेस डाउनलोड करने होते हैं। तो या तो आपके पास ये तरीका है कि आप स्क्रैच से बिल्ड करो, जिसमें कि आपको खुद ही स्ट्रक्चर बनाने होंगे, देन आपको खुद ही ये सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने होंगे। रिएक्ट रिएक्ट डोम वगैरह पैकेजेस खुद ही से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, खुद ही से सेटअप करने पड़ेंगे, बट उससे बेटर है कि आप क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करो एंड वहाँ से आप डायरेक्टली आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। तो आपको फुल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करता है कि आपको एक सैम्पल पेज, वो डिफ़ॉल्ट पेज आपका क्रिएट कर देगा। उसमें स्टाइल कहाँ पे इंक्लूड करते हैं वो भी सारा कुछ ऑलरेडी वो कॉन्फ़िगर्ड है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो नए कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करने हैं आप वो ऐड कर सकते हो उसमें। तो ये हो जाएगा। रिएक्ट जेएस के लिए सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन आपको रिएक्ट जेएस ओआरजी में ही मिलेगी। यहाँ पे आप डॉक्स में जाओ, लर्न रिएक्ट। तो ये इन्होंने जो गाइड बनाई है ये काफ़ी मतलब सही से इन्होंने स्ट्रक्चर किया हुआ है हर कुछ। तो आपको इजीली सब कुछ सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है। कुछ बताऊँ कैसे हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, कैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट में एक मेथड होता है रेंडर। रेंडर मेथड में हम क्या करते हैं, अ, हम अपने कंपोनेंट जो भी हमने कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बताता हूँ कि कंपोनेंट होता क्या है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा हेडर है, ठीक है। तो आप एक पेज में क्या करना चाहते हो, आप ये हेडर बनाना चाहते हो। तो हेडर आप जब आप देखोगे इंस्पेक्ट करके, तो बेसिकली हेडर आपका क्या है, एक सेट ऑफ एचटीएमएल है जो आपको लिखना है, ठीक है। आप देखोगे ये रहा आपका हेडर, ठीक है। तो अब यही हेडर आप बाकी पेजेस में भी आप देखते हो। अगर हम इस पेज में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपका सेम हेडर है, ठीक है। तो हमने दूसरे पेज
दूसरे पेज में हमने फिर से इसे इंक्लूड नहीं किया है, लिखा नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये हेडर जो है, ये हेडर हमारे पास एक कंपोनेंट की तरह हो और हम कहीं पे भी इसे इंजेक्ट करें तो मुझे ये हेडर दिखना चाहिए कोई से भी पेज में। चाहे हम एक दूसरा ही पेज क्यों ना बना लें। अगर हम दूसरे किसी पेज को बनाते हैं तो वहां पे भी हमें सेम हेडर मिले। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा एक हेडर है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक हेडर जो है, हेडर, ये एक सैंपल हेडर मैंने बनाया। अगर आप देखोगे तो हेडर जस्ट इन द सेम वे हेडर है, मैंने एक चीज, हाँ, तो ये है हेडर। हेडर में हमने क्लास रखा है, बैकग्राउंड डार्क है, टेक्स्ट हमारी लाइट होनी चाहिए, ये हमने लोगो ऐड किया है, और ये हमने एक प्रोफाइल अवतार डाला हुआ है और एक यूजर नेम। तो ये एक सिंपल सा हेडर है, जो कि क्या होता है कि एक यूजर लॉग्ड इन जब नहीं है, तब आप देखोगे कि हेडर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, हेडर सिंपल ब्लैंक सा होता है और उसमें सिंपल लोगो वगैरह रहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक हेडर बनाया है जिसमें कि वो डार्क रहे और लोगो आपको दिखता रहे, और प्रोफाइल जो है वो लॉग्ड इन, यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हमें अवतार में कुछ हमें दिखेगा नहीं, हमें एक ब्लैंक इमेज दिखेगा, और एनोनिमस यूजर वहां पे मेंशन रहेगा, और गेस्ट यूजर, एनोनिमस की जगह हम कर देते हैं गेस्ट यूजर, ठीक है। तो ये हमारा हेडर है। अब क्या होता है कि यूजर उसे लॉगिन करता है, ठीक है, लॉगिन करता है तो आपके एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वो बैकग्राउंड लाइट हो जाता है उसका, और टेक्स्ट उसमें डार्क हो जाते हैं, लोगो सेम रहता है, और प्रोफाइल अवतार में आपका क्या हो जाता है, वो यूजर की पिक आ जाती है, एंड देन यहाँ पे यूजर नेम चला आता है जो हम गेस्ट यूजर शो कर रहे थे। तो इसमें इसमें सिमिलैरिटी क्या है, इसमें सिमिलैरिटी यही है कि आप, ये स्ट्रक्चर सारा कुछ सेम है। हेडर जो है, हेडर अपने प्लेस पे है, देन उसके बाद हम एक डिव ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा एक आईएमजी है, देन उसके बाद एक डिव है जिसके अंदर दो चाइल्ड एलिमेंट्स है। तो इन दोनों में आप देख रहे हो कि दोनों बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर, ओनली थिंग इज चेंजिंग इज द वैल्यू। तो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ये सेम है, प्रोफाइल अवतार की ये सोर्स चेंज हो रही है, और ये नेम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको सिर्फ एक टेम्पलेट की तरह बना दिया। हमने ये लिया, ये हमारा क्लास चेंज हो रहा है, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पे बीजी डार्क है, ये हमारा बीजी लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया क्लास हेडर क्लास, हमने यहाँ पे लगाया। ये वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हैं, तो हमने एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, और और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस से हम टेम्पलेट बनाते हैं, और डिव ये तो सेम है दोनों में, हमने इसे चेंज नहीं किया। यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे हमारा ये सोर्स चेंज हो रहा है, तो हमने ये कांस्टेंट वैल्यू से हमने क्या किया, इसे चेंज कर दिया, प्रोफाइल इमेज। सेम वे में हमने क्या किया, नेम को चेंज कर दिया। तो ये तीन वेरिएबल्स हमने बना दिए, ठीक है। अब इन इन वेरिएबल, इसे हम क्या करें, एक टेम्पलेट की तरह यूज कर रहे हैं, ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया। अब क्या करेंगे, इस टेम्पलेट में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वो वैल्यूज यहाँ पे हमारे रिप्लेस करेंगे। तो हर रिएक्ट कंपोनेंट, अब इससे क्या हो जाता है, हमने इसे रैप कर दिया एक रेंडर मेथड में। रिएक्ट रेंडर मेथड क्या करता है, इसे रेंडर करता है।
तो जब भी हमें चेंज करना होगा हमें एक रेंडर मेथड बनाएंगे और रेंडर मेथड बनाने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक क्लास। क्लास ये है हमारा हेडर कंपोनेंट। जैसे हम सिंपल एक क्लास बनाते हैं, हमारे पास एक क्लास होता है, क्लास में हम मेथड डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम एक मेथड डिफाइन करते हैं और क्लास में हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो सेम वे में ये एक रिएक्ट कंपोनेंट क्या होगी, क्लास होगा, ठीक है। और क्लास से पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे इसमें रिएक्ट, एंड देन ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसे उठाकर यहाँ डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट। अब हमें क्या करना होगा, ये कंपोनेंट इस क्लास को हम कैसे यूज करेंगे, तो हमें इसके लिए इसे एक्सपोज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक्सपोर्ट तो हमने इसे एज ए कंपोनेंट एक्सपोज कर दिया। अब ये क्या है, ये एक सेपरेट फाइल में है। ये बन गई आपकी कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट अब क्या है कि ये हम कहीं पे भी इसे इंपोर्ट करेंगे इस पर्टिकुलर जेएस को, और हम वहां पे इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया होगा। हम्म। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या करता है, इसने आपको बना बनाया एक टेम्पलेट दे दिया। अब आप यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके स्टार्ट स्क्रिप्ट्स हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट। तो हमने ये कंपोनेंट तो बना दिया। अब इस कंपोनेंट को यूज कैसे करेंगे, तो हम यूज कैसे करते हैं, से ये हमारा एक HTML है, ठीक है। और हमें ये हेडर यूज करना है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये हेडर, सॉरी, ये हेडर हमने हेडर कंपोनेंट, एंड देन हमने इज ऑथेंटिकेटेड हमने पास किया, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे हेडर क्लास क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास है const is authenticated equal to this dot props, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ से जो भी हम पास करते हैं ये कहलाते हैं प्रॉप्स। एक कंपोनेंट में जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो प्रॉप्स कहलाते हैं। तो ये थीम एक और प्रॉपर्टी है। तो दो वेरिएबल हमने पास किए हैं, इज ऑथेंटिकेटेड और थीम। थीम क्या है, डार्क, और इज ऑथेंटिकेटेड अगर हमने सिर्फ लिख दिया दैट मीन्स कि इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू ट्रू।
अगर हमने यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड इज फॉल्स, ठीक है, तो इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे आपको इसकी लॉजिक लिख देते हैं, मतलब यूजर लॉगिन हो चुका है। लॉगिन के केस में हमने क्या देखा, ये बिजी लाइट लगेगा क्लासेस में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास बता दिया कि ये क्लास लगने वाला है। एल्स एल्स डिफाइन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं ऊपर में डिफाइन कर देते हैं क्लास का डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो हम यहाँ से पास कर रहे हैं इज ऑथेंटिकेटेड, दैट मीन्स कि ये ट्रू वैल्यू मिलेगी, इसे ट्रू वैल्यू मिलेगी तो ये चेक करेगा क्लास का वैल्यू बिजी लाइट। तो सॉरी क्लास, ये हेडर क्लास होगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो गई, ठीक है। अब इज लॉग्ड इन है तो हमारा प्रोफाइल इमेज भी क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रोफाइल इमेज भी हम चेंज करेंगे और प्रोफाइल नेम भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो भी वैल्यूज हमने पास किए उसके उसके बेसिस पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। थीम, एक्चुअल में थीम ये हम हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। हेडर कंपोनेंट इज ऑथेंटिकेटेड, तो इज ऑथेंटिकेटेड को हमने चेक किया। इज ऑथेंटिकेटेड में यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर वो ऑथेंटिकेटेड फॉल्स होगा दैट मीन्स ये वैल्यूज हमारे क्या होंगे, हेडर क्लास हमारा बीजी डार्क टेक्स्ट लाइट लग गया एंड ब्लैंक प्रोफाइल इमेज लग गए और गेस्ट यूजर। तो जब कुछ भी लॉगिन वगैरह नहीं हुआ है तो आपको डिफॉल्ट ये दिखेंगे, और जैसे यूजर लॉगिन हो जाता है देन वो बैकग्राउंड लाइट हो जाएगा और ये सारे वैल्यू दिखेंगे। तो इस तरह से ये आपने कंपोनेंट एक इंडिपेंडेंटली बना दिया, और यहाँ पे जब भी आपको यूज करना है तो आप सिंपली हेडर कंपोनेंट पास करो और ये वैल्यू। अब ये वैल्यू इज ऑथेंटिकेटेड कहाँ से आ रही है, तो एक और कंपोनेंट इसके ऊपर है, ठीक है। आप इस कंपोनेंट में उसकी लॉजिक आपके पास है कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, हम कुकी से रीड कर रहे हैं, कुकी से वैल्यू ले रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये अब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो क्रिएट रिएक्ट आप क्या करता है, आपको एक बना बनाया एक सर्वर में आपका रन करता है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे, और आपको एक पेज, एक डमी टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पेज है अब आप चाहते हो कि आप अपना कस्टम पेज बनाओ जिसमें कि आपका एक हेडर हो, ठीक है, और एक कंटेंट सेक्शन हो और एक फुटर हो। तो हम वो कैसे बनाते हैं, अब हम यहाँ पे जाएंगे डेमो ऐप डॉट जेएस पे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर ये है, एंड ऐप, यही आपका मेन कंपोनेंट है ऐप, जो कि आपका रैप करता है, जब
जो आपका रूट कंपोनेंट है, जो सभी को रैप करता है। ठीक है। और ये हमने दे रखा है कि रिएक्ट रिएक्ट रेंडर ऐप एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। ठीक है। अब आपको HTML ऐप कहाँ पे रेंडर करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये है हमारा वो प्लेस। ठीक। तो यहाँ पे आप पब्लिक में देखोगे एक index.html है। ठीक है। ये index.html में आप देखोगे ये पूरा HTML उनका बना हुआ है। ठीक है। इस HTML में हमने एक एम्प्टी div बनाया हुआ है, रूट। तो ये क्या करेगा, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या करता है, आपके HTML डॉक्यूमेंट में वो फाइंड करता है, और इस HTML डॉक्यूमेंट में वो रूट आईडी उसे मिलेगी यहाँ पे, और वो यहाँ पे सारा कंटेंट आपका लोड कर देगा। ठीक है। तो ये हमें HTML हेड बॉडी वगैरह बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम सिर्फ हमें जो चीज़ चाहिए हम सिर्फ वो बनाएंगे। हमें हेडर हेडर बनाना है, हम हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे। हमें HTML वगैरह लिखने की और कुछ ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपना और जो भी प्रेजेंटेशनल एलिमेंट है हमें वो डालना है, हम वो बना देंगे। अगर आपको टाइटल वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज करके सेव कर लो, तो यही आपको वहाँ पे नजर आएगा। ये हमने सेव किया। जैसे ही हम सेव करते हैं, ये क्या करता है, ये पूरे प्रोजेक्ट को रीलोड करेगा, और आप देखोगे ये आपका चेंज हो गया, यहाँ पे नेम डेमो रिएक्ट एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। अभी हम इसे फिर से चेंज कर देते हैं। डेमो एप्लीकेशन हमने चेंज किया। अभी हम देखोगे यहाँ पे ये है। अगर आप मेटा प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो, मेटा टैग्स वगैरह चेंज करना चाहते हो, या कोई एडिशनल बूट CSS वगैरह इंक्लूड करना चाहते हो, बूटस्ट्रैप की कंप्लीट लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इस लिंक में आप यूज कर सकते हो। जैसे हम एक्सटर्नल CSS या हम गूगल फॉन्ट्स वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो गूगल फॉन्ट्स की लिंक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इस index.html में, और यही पेज हमारा हर बार लोड होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही HTML पेज है। ठीक है। बट जो कुछ भी हम क्रिएट करेंगे कंटेंट, वो हम 50 तरह के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारे पास पेज एक ही है। तो हमें क्या है कि अलग अलग पेज में हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सिर्फ एक कंटेंट बना रहे हैं और वो कंटेंट अपने आप उसी पेज में इंसर्ट हो रहा है। तो यही कहलाता है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक ही पेज है हमारे पास, वो वन टाइम लोड होगा, एंड देन बाकी जो भी ऑपरेशन होंगे वो आपके ब्राउजर पे ही होंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडेक्स में जाते हैं, ऐप है, ऐप में जाते हैं। ऐप में सबसे पहले आप यहाँ पे इसे रिमूव कर दो। हमें ये नहीं चाहिए। अब ये आप देखोगे कि जब हम HTML एलिमेंट में हम क्लास लिखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्लास नेम है, बिकॉज क्लास क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा कि हम इसे एक क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं कि एक अगर हम फंक्शन लिखते हैं जो कि HTML हम रिटर्न करें, तो ये भी एक वैलिड कंपोनेंट है। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम एक क्लास ही बनाएं, कंस्ट्रक्टर डालें, एंड देन रेंडर मेथड उसके अंदर डालें। हमने सिंपली एक फंक्शन बनाया और उसे एक्सपोर्ट कर दिया, तो यही हमारा एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है। तो अब भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे चेंज कर रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ। CSS में यहीं पे रहने देता हूँ, ताकि CSS अभी मैं ऐड करूँ। ठीक है। और मैं इसे यहाँ से रिमूव नहीं करता हूँ। ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा रूट एप्लीकेशन है। रूट एप्लीकेशन का हमने क्या किया, नाम चेंज कर दिया।
ठीक है। नेम जब हमने चेंज किया तो यही सेम नेम आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसे डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा है। ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपको ये नहीं मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आप जब भी इसमें से कुछ एक्सपोर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका वहां पे रेफर करेगा। अभी आप इसमें जाओ और इसमें देखो, बॉडी के अंदर, रूट के अंदर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्लास ऐप और हेडर हेडर क्लास यहाँ पे इंक्लूडेड है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। राइट। अब आप ये कहोगे कि ये डेमो एप्लीकेशन नेम है और कि यहाँ पे ऐप नेम है। ठीक है। तो ये क्या होता है, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो फाइल है app.js, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फंक्शन लिख रहे हैं और इसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। या हम एक ही क्लास लिख रहे हैं पूरे फाइल में, तो हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। से एक ही फाइल में हमने मल्टीपल क्लासेस लिख दिए। ठीक है। लेट्स से कभी ऐसा प्रोग्राम आपने देखा होगा कि क्लास पर्सन, एंड देन फिर हमने कुछ कुछ डिक्लेयर किया, पर्सन, लेट्स से स्ट्रिंग नेम, इस तरह से हमने डिफाइन किया। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, क्लास क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम पर्सन। तो इस तरह से हमने मल्टीपल क्लासेस एक ही फाइल में लिख रखा है। ठीक है। तब इन इन दैट केस हमें क्या होगा, हमें नेम्ड एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि ये चीजें हमारी यहाँ पे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट हम कैसे यूज करते हैं, ये मैं बताता हूँ। अगर हम इसे डिफॉल्ट को हटा दें यहाँ से, इसे हम डालते हैं एक्सपोर्ट यहाँ पे। तो अभी आपको कंपाइलेशन एरर आई। ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। नहीं, ये एरर तो यहाँ पे नहीं है। एक्सपोर्ट फंक्शन, हाँ यहाँ पे जाते हैं, इंडेक्स। अब यहाँ पे आपको नेम भी रखना होगा, सॉरी, डेमो एप्लीकेशन। और जब आपने डेमो एप्लीकेशन रखा तो इसे भी आपको चेंज करना होगा डेमो एप्लीकेशन। तो ये क्या, अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी आ गया। ठीक है। आप रिफ्रेश करोगे, ये देखो सेम सेम चीज है। ठीक है। तो ये आपका हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट। जब भी आपको मल्टीपल थिंग्स आपको एक्सपोर्ट करने हैं तब हम इस तरह से नेम्ड एक्सपोर्ट यूज करते हैं, जिसमें कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जितने भी आपने एक्सपोर्ट किए हैं, ABCD जो भी आपने किए हैं वो यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट चाहिए से, आप जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट रखते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो ये आपका हो जाएगा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सेम चीज। ठीक है।
तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ऐप में जाएँगे। हाँ, तो अभी अभी मैं कह रहा था डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। हम फंक्शन कंपोनेंट भी बना सकते हैं, हम क्लास कंपोनेंट बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फुटर बनाता हूँ, एक्सपोर्ट, सॉरी, पहले मैं डिफाइन करता हूँ क्लास फुटर इंस्टेंस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब आपको क्या है कि ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब भी आप क्लास यूज करोगे तो आपको रिएक्ट कंपोनेंट से एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट आप अगर फंक्शन लिख रहे हो तो फंक्शन में आपको नहीं करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट हर क्लास के अंदर एक रेंडर मेथड होगा, और ये रेंडर मेथड क्या करेगा, यही सेम जो हम यहाँ पे रिटर्न हमने यहाँ पे किया है। तो जब भी आपको क्लास से फंक्शन में चेंज करने की बात आई तो सिंपली आप इस पर्टिकुलर मेथड को आप उठाओ और एक फंक्शन बना दो। ठीक है, तो यही आपका बन जाता है फंक्शन कंपोनेंट। और अगर फंक्शन कंपोनेंट को क्लास चेंज करना है तो फिर आप इसे कॉपी करो और फिर उसे रेंडर नेम दे दो। तो ये आपका बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम फुटर नाम दे देते हैं। ठीक है, ये फुटर हमने दे दिया कुछ। ठीक है, अब इस फुटर एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन डेमो एप्लीकेशन और एक्सपोर्ट फुटर, यहाँ पे मैंने फुटर को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अच्छा मैं एक चीज और करता हूँ, एक दूसरा ही फाइल बनाता हूँ, हेडर डॉट जेएस, और एक होगा फुटर डॉट जेएस। मैं हेडर और फुटर अलग करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे डिफरेंस हो। तो मैं यहाँ से फुटर को मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे मैं फुटर में डालूंगा। डालने से पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और हेडर में मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐप से मैंने उठाया इसे, डाल दिया। ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसे मैं डाल देता हूँ ऐप में। ऐप में ऑलरेडी है ये, फुटर सेव है, ये सेव है फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट हमने अलग अलग बना लिए, एक हमारा क्लास कंपोनेंट है, एक हमारा फंक्शन कंपोनेंट है। ठीक है, अब ऐप में जाएंगे, ऐप हमारा एम्प्टी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐप सिर्फ एक डिव है। ठीक है, अगर अभी आप ऐप को देखोगे तो ऐप में हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। डिव है, इसमें एक क्लास ऐप है, एक एम्प्टी ऐप डिव पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमें एक हेडर चाहिए, हमें एक फुटर चाहिए। ठीक है, तो हेडर हमने ऑलरेडी बना रखा है और फुटर भी हमने बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम
header import footer from footer। ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों में। और ये Yes. हमने हेडर रखा है और ये हमने फुटर। फुटर हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है और हेडर हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। हेडर में हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है और फुटर में हमने डिफॉल्ट नहीं लगाया, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है कि ये नेम हमें मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ऐप में जाओगे तो ये फुटर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें वो नहीं मिलेगा। वहीं आप क्या कर सकते हो, इसे आप चेंज कर सकते हो डिफॉल्ट को। डिफॉल्ट को आप कुछ भी नेम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि मैं फुटर भी चेंज करूँ, तो फुटर को हम क्या करते हैं, एज फुटर एलियास बना। कंपोनेंट, इस तरीके से। अभी हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आ गया, दिस इज ए हेडर एंड दिस इज ए फुटर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं और इसमें हम डालते हैं हेडर, और हम इसे उठाकर डाल देते हैं हेडर के अंदर। एक वहीं पे हमें ये भी अपडेट करना होगा। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब एक और फोल्डर बनाते हैं हम, फुटर। ठीक है। फुटर को उठा के फुटर में डाल दिया। ठीक है। फुटर और ये हेडर, और ये हो गया हमारा ऐप। हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करके देखते हैं सब कुछ सही है, सारा कुछ सही है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेडर। हेडर की जो स्टाइल है हम चाहते हैं कि वो हेडर हेडर की स्टाइल हेडर में ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हेडर डॉट सी एस एस हम एक डिफाइन करते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे इसे इंपोर्ट करेंगे, जैसे हमने ऐप में किया है। ऐप में हमने स्टाइल बनाया है और ऐप में हमने किया है। तो हम यहाँ पे हेडर डिफाइन करते हैं, हेडर क्या चलो ये हमने डिफाइन किया। बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर होंगे तब कोई ना खा वहाँ बंद ये, कर दे। और विड्थ ये हमने डिफाइन किया। ठीक है। अब आप इसे इंक्लूड करते हो। यहाँ पे अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, राइट, बिकॉज हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, इंक्लूड हेडर डॉट सी एस एस। ये आपका हेडर आ गया। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो इसमें, फुटर में आप कुछ चेंजेस चाहते हो। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में हमने एक बनाया कंटेंट, और हमने क्या किया, ये ऐप में है तो हम ऐप में वो क्लास डिफाइन करेंगे कंटेंट। सेम चीज हम जाते हैं हम फुटर के लिए। हमने एक फुटर डॉट सी एस एस बनाया।
फुटर में डाला, हाइट आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। हेडर वाले से। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब और पूरे ये देश में हमने शुरू हो गई है। इंक्लूड ऐसे किया में अपने फुटर घरों से में। बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम कहाँ है? तो यहाँ पे दिस इज हेडर एंड दिस इज फुटर। अभी हैं? हम ये देखते हैं कि क्लास नेम कंटेंट क्यों नहीं आया। तो कजलो जा रहा ट्यूशन दोकना बंद कर दियो ना। हमारा भी क्लास से लागल है। ओके, हाइट 400 px on कलर विड्थ तो हमने दे रखा है। हाँ, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने हेडर का कंटेंट बना दिया, हमने फुटर बना दिया। ठीक है, अब फुटर में जो भी कंटेंट जाएंगे वो हम क्या करेंगे, हम एक और कंपोनेंट, हम जो फुटर में कंपोनेंट जाने हैं हम क्या करेंगे, उसमें फुटर के लिए यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे से लिंक्स डॉट जेएस। ठीक है, या फिर आप का हो गया कॉपीराइट। तो इस तरह से जो फुटर रिलेटेड कंपोनेंट्स है वो हम ग्रुप करते हैं फुटर में, और जो हेडर रिलेटेड है वो हम ग्रुप करते हैं हेडर में। एंड देन कुछ अगर कॉमन कंपोनेंट होंगे ग्रुप कर लेंगे कंपोनेंट में, और हम वहां पे बनाएंगे। तो बेसिकली बेसिक हमारा आइडिया ये है कि जब भी हमें कोई कंपोनेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, और उसके रिटर्न में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न में डिफाइन करेंगे कि हमें एचटीएमएल में क्या आना है। ठीक है, अब एचटीएमएल जो है वो प्योर एचटीएमएल भी हो सकता है और इंक्लूडिंग कंपोनेंट भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो रिटर्न कराया है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये div है और ये कंपोनेंट है, ये div है। तो आप मिक्स ऑफ कंपोनेंट एंड एचटीएमएल भी हो सकता है। एंड देन जो फाइनल आपका रेंडर होगा देन हेलो। दैट विल बी प्योर हाँ। एचटीएमएल। सो ये div, अब इसके अंदर का जो एचटीएमएल है वो हाँ। यहाँ पे आता कितना है। अगर इसके अंदर HTML के अलावा भी कंपोनेंट है देन इट विल अगेन गो इनसाइड दैट छोटा वाला कंपोनेंट 5 वाला एंड इट पैकेट है विल रे। फिच दैट। तो इस तरह से ये पूरी ट्री बनती है और ये वो नहीं है। कंपोनेंट रेंडर होता है। तो आई थिंक आज के लिए ये काफी सूखा होगा, मिर्च, या सूखा मिर्चा कंपोनेंट नहीं लाइफ है, साइकिल गोंडा मिर्चा है। भी डिस्कस कर लूँ। अच्छा, कंपोनेंट लाइफ साइकिल मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि वो नहीं। थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग एक पेज बना सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बना सकते हो, हर कंपोनेंट्स को अलग अलग स्टाइल दे करके आप खुद ट्राई करो कि कौन कौन सा कंपोनेंट आप कहाँ कहाँ पे प्लेस करोगे, कैसे चेंजेस करोगे, कैसे कंपोनेंट अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट को सेम लिंक कंपोनेंट को कैसे करेंगे। एक ही लिंक कंपोनेंट से यहाँ पे बहुत सारे लिंक हैं, फुटर में भी हमारे पास भी होते हैं। सेम लिंक कंपोनेंट को हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे वो सारे आप ट्राई करो। एंड देन एक डिफरेंस और था, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। यहाँ पे दो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट और एक होता है आपका कंटेनर, और हम लोग इसको कभी कभी स्मार्ट कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कभी इसे हम डम कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है स्मार्ट और डम कंपोनेंट में, ये जब हम यहाँ पे एक कंपोनेंट हम बनाते हैं, हेडर कंपोनेंट, हमने एक हेडर कंपोनेंट बनाया, ठीक है। इसमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यहाँ पे कुछ लॉजिक ऐड कर रहे हैं अभी। ये प्योरली प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट हुआ। एक कंपोनेंट जो हम बनाते हैं उसमें प्योर एचटीएमएल रहा और एक वैल्यू रहा। लेट्स से ये वैल्यू, ठीक है, हम इसे चेंज करना चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो हम एप्लीकेशन के थ्रू हम पास करें। तो हमने क्या किया,
props dot sorry dot header message, यहाँ पे हमारा होना चाहिए props। ठीक है, तो प्रॉप्स हम क्या करते हैं कंपोनेंट पे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया ये जो ये कहलाता है प्रॉप्स। तो जो भी हम आउटर एक कंपोनेंट के बाहर से हम अगर कुछ डेटा हम पुश करना चाहते हैं इस कंपोनेंट में शो करने के लिए, तो हम थ्रू प्रॉप्स करते हैं। तो हमने एक प्रॉप ऐड किया और ये हेडर मैसेज प्रॉप्स के थ्रू दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशन में जाके ये जो हेडर कंपोनेंट है यहाँ से हमें प्रॉप वो पास करना पड़ेगा, हेडर मैसेज। और इसका क्या वैल्यू है, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हेडर आपका, हेडर में कुछ भी नहीं है बिकॉज हमने वहाँ पे एक वेरिएबल पुट किया था बट वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं थी। अब हम यहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे वो वैल्यू ये रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या किया हमने, जो भी प्रॉप में से पास किया ये प्रॉप वैल्यू के साथ वो बिना कुछ छेड़छाड़ किए जो जो हमने पास किया ये वही दिखा रहा है। ठीक है, इसने कोई लॉजिक नहीं लगाया, इसने कोई इसमें चेंजेस कोई कंडीशंस नहीं लगाए। तो इसे हम कहते हैं डम कंपोनेंट और प्योरली प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट। ये प्योरली प्रेजेंटेशनल है, इसमें कोई सी भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, बट यही आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्रॉप पास किया इस प्रॉप के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना बिजनेस लॉजिक ऐड कर रहे हैं कि अगर ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। ठीक है, और इस तरह की और दूसरी कुछ लॉजिक ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले चेक करना चाहते हो कि अगर ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप एक एपीआई कॉल करो और फिर आप उसे लॉग इन कराओ। तो वो सारी चीजें अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो हो जाता है स्मार्ट कंपोनेंट, जो कि कंट्रोल करता है कि क्या डेटा आप पुश करना चाहते हो अपने HTML में। इसकी क्या वैल्यू होगी ये नहीं कह सकते कि यहाँ से जो हमने प्रॉप पास किया ये डायरेक्टली वही डेटा हमें शो कर रहा है। ये अंदर में प्रोसेस कर रहा है और इसकी आउटपुट क्या होगी वो इस प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है। बट जो प्योरली प्रेजेंटेशनल होते हैं उनकी क्या होती है, जो आउटपुट होती है वो हमें पता है कि जो हम प्रॉप में भेजेंगे वो वही वहाँ पे प्रेजेंट करेगा। सो ये एक डिफरेंस होता है प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट और कंटिन्यूअस में। तो बाद में हम इसमें देखेंगे कि ये क्या होता है और हम कैसे इसका यूज करते हैं जब रिडक्स जैसे कंसेप्ट आएंगे या स्टेट मैनिपुलेशन या इवन लाइफ साइकिल मेथड्स आएंगे। तो हमें तो इसमें मोर डिटेल्स में आपको पता चलेगा कि प्रेजेंटेशनल और कंटेनर में क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस वाइज क्या डिफरेंस हो जाता है जब हम यूज करते हैं इसे। तो वो सारी चीजें हम फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऐड करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, और मैंने एक लिंक कहा था वो है ये एटॉमिक डिजाइन कंसेप्ट। सो ये एटॉमिक डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक तरह की कॉन्सेप्ट इन्होंने दी है कि जो भी हम पूरे पेज को हम छोटे छोटे रियूजेबल कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो आप जो एक पेज देखते हो वो पेज आपका क्या होता है, एक मिनट। पढ़ रहे हैं और क्या करेगा, रिएक्टर पूरा नींद लग रहा है ना। हम पूरा सूत रहे थे बताओ। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम
हम इंडिविजुअल एटम बनाते हैं, ठीक है। एटम के बाद वो मॉलिक्यूल बनते हैं, देन ऑर्गेनिज्म होता है, एंड देन टेम्पलेट होता है, एंड देन पेजेस होता है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हेडर बनाया, ठीक है। और ये जो ऐप है, ऐप में हम हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट डाला है। अब अभी मैं कह रहा था कि हम एक लिंक बनाएंगे, यहाँ पे हमने कॉपीराइट आइटम बनाया, तो वो क्या हो गया, वो एक और छोटा एलिमेंट है जो कि फुटर में ऐड होगा, इस फुटर में ऐड होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, और हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते जा रहे हैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, एंड देन उसको फाइनली कंबाइन करके हम क्या करते हैं, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यही यही बेस है इस डिजाइन का, जिसमें कि हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हम पूरा पेज बनाते हैं। तो ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। और क्या था शेयर करना, हाँ ये। तो ये जो रिएक्ट की डॉक है, ये आप क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो, आप एक एप्लीकेशन बनाओ। आप सिंपली, जैसे मैंने यहाँ से ऐप से सब कुछ रिमूव किया और हेडर एंड फुटर डाला, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप एक 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 चैप्टर, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वहाँ पे आप ऐड करके देख सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये एसईओ एसईओ थिंग्स कैसे हैंडल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हमने जनरेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडर एंड फुटर जो डाला है वो हमें यहाँ तो दिख रहे हैं, बट अगर आप पेज सोर्स देखो, तो पेज सोर्स में हमारे पास ये रूट एम्प्टी ही है। दैट मीन्स कि एसईओ जो भी कंटेंट होगा उसे क्रॉल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, एक होता है रिएक्ट डोम डॉट हाइड्रेट, ठीक है। तो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर ये क्या कर रहा है, ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग, ये कंप्लीटली क्या हो गया, सिंगल पेज एप्लीकेशन हो गया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है सर्वर साइड रेंडरिंग। इसमें क्या होता है कि हम जो मिनिमल एचटीएमएल है, हम क्या करते हैं, बैकएंड से ही हम क्रिएट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास सिर्फ एक ही सर्वर है, लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है, जहाँ पे कि आपका क्लाइंट भी रन कर रहा है। बट उस केस में आपको दो दो अलग अलग सर्वर मेंटेन करने पड़ेंगे। एक आपका होगा, एक आपका हो जाएगा से फॉर एग्जांपल, एक आपका हो जाएगा सर्वर, ठीक है, एक आपका हो जाएगा क्लाइंट। तो ये जो आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नोड में, ठीक है। नोड सर्वर, जिसमें कि आप जेसन वगैरह जनरेट करते हो, आप एक माइक्रो सर्विस को कॉल करते हो, जो कि आपका डीबी से कनेक्टेड है, डीबी से आप डेटा फेच करते हो। तो अगर हम एचटीएमएल रेंडर करना चाह रहे हैं बैकएंड से हमारे पास एक प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज एसीओ के लिए हमें क्या होता है, एसीओ से क्रॉल करना चाहिए जनरली ई कॉमर्स में। तो प्रोडक्ट पेज को हम अगर बैकएंड से हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट चाहते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट हमारा है, ये हमारा बैकएंड से ही आए, तो हमें बैकएंड में वो प्रोसेसिंग, वो डेटा लानी पड़ेगी और वो प्रोसेस आनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें उसके लिए रिएक्ट में अलग से कुछ लिखना नहीं पड़ता है।
हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये मेथड चेंज करना पड़ेगा। ये जो रिएक्ट रेंडर है इसे हमें हाइड्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे हम एपीआई कॉल करते हैं यहाँ पे, यहाँ से जब हम एपीआई कॉल करते हैं और हम यहाँ से डेटा रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो डेटा यूजुअली हमारा क्या होता है, जेसन फॉर्म में रहता है। तो हम क्या करेंगे, एचटीएमएल में एक और मेथड है हमारे पास, वो है react डॉट रेंडर टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका रहेगा नोड सर्वर में, ठीक है। नोड सर्वर में आपका क्या होता है, आपने एक सर्वर डॉट जेएस बनाया, ठीक है, जेएस नहीं, सर्वर डॉट जेएस बनाया आपने, इसमें क्या किया, से कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस बनाया आपने, देन ऐप डॉट लिसन किया, एंड आपने यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई किया, लेट्स से 3003, एंड यहाँ पे एक राउट स्पेसिफाई किया, ऐप डॉट गेट, ठीक है। तो आपने एक सिंपल सा सर्वर बनाया एक्सप्रेस, जो कि 3003 पे लिसन कर रहा है। यहाँ पे एक ने आपने डिफॉल्ट राउट बनाया, डिफॉल्ट राउट में आपने क्या किया, जैसे ही हम लोकल होस्ट 3003 हिट करेंगे तो हमें ये कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से हमारा डिफॉल्ट पेज है, ठीक है, तो डिफॉल्ट पेज में हमें क्या क्या डेटा आना चाहिए, प्रोडक्ट का डेटा हमें आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे ऐप, ये जो हमने ऐप बनाया है ना यहाँ पे, ये ऐप, ठीक है, ये जो रैप कर रहा था इंडेक्स में, हमने देखा कि इंडेक्स में हमने ये एप्लीकेशन पास किया, राइट। तो ये हमारा हो जाता है क्लाइंट इंडेक्स। अब हम हमें एक सर्वर डॉट जेएस बनाना होगा, सर्वर जो कि हमारा नोड नोड सर्वर बन रहा है। ये सर्वर डॉट जेएस हमारा क्या करेगा, इसे मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे एक सर्वर डॉट जेएस होगा और हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्रेस सर्वर हमने बनाया है, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये डिपेंड करता है कि आप क्या रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे रिस्पॉन्स इक्वल टू रिएक्ट डॉट रेंडर टू स्ट्रिंग। आई थिंक इसके लिए एक पैकेज है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सॉरी, फ्रॉम सर्वर, हाँ ये है। और यहाँ से हम ये पास कर देंगे ऐप, ठीक है। नाउ अब ये प्रोसेसिंग कर क्या रहा है, जब हम नोड को नोड सर्वर अप करते हैं, ठीक है, नोड सर्वर हमारा 3003 पे रन कर रहा है। तो जैसे ही हमने लोकल होस्ट 3003 पे हिट किया, तो ये यहाँ पे हिट कर रहा है एंड देन इट हिट्स इनटू दिस लाइन। तो ये क्या कर रहा है, ऐप ऐप ऑलरेडी हमारा ये कंपोनेंट फॉर्म कर रहा है यहाँ से, ठीक है। ऐप में हेडर ऐड हो चुके हैं,
और फुटर ऐड हो चुके हैं, सब कुछ ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड देन ये क्या करेगा, ये एक कंपोनेंट है, एक ऑब्जेक्ट है, रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये इसने क्या किया, रेंडर डॉट टू स्ट्रिंग, रेंडर डॉट टू स्ट्रिंग क्या कर देता है, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ये रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड आप कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप ये एचटीएमएल आप लोकल होस्ट ब्राउजर पे आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये तो HTML नहीं है पूरा, बिकॉज हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट का HTML डॉक नहीं है, हेडर एंड बॉडी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होता है, ये यहाँ पे होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेम्पलेट बनाया, डॉलर ये 6 टेम्पलेट लिटरल्स है, और कि हम मल्टी लाइन में हम ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे HTML, यहाँ या लेट्स कॉपी दिस इंडेक्स, यहाँ से हमने पूरा ये कॉपी कर लिया बॉडी तक, सर्वर में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम फिर क्लोज कर रहे हैं इसे, बॉडी स्लैश HTML, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि आप जब फर्स्ट टाइम हिट करते हो, ठीक है, तो आपने जैसे ही 3003 पे हिट किया, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा एप्लीकेशन आपका हेडर एंड फुटर जो है वो रिएक्ट के थ्रू जनरेट हो रहा है, एंड देन इस स्ट्रिंग में अपेंड होके आपको पूरा HTML मिल जा रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस ये क्या होगा, जो पूरा अ, ये जो पूरा HTML है, ऑल द डेटा एंड HTML वो प्रॉपर फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब बात उठती, ये HTML में तो आ गया, अब फिर से हमें कंपोनेंट क्लाइंट में बनाने पड़ेंगे क्या, तो वो क्या है, इस इस पूरे प्रोसेस को ही हम हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है कि जब आपका रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट आपका लोड होता है एक स्क्रिप्ट के थ्रू, जैसे ये जो आपका स्क्रिप्ट है ना, बॉडी बॉडी आपका यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। तो आपका स्क्रिप्ट, रिएक्ट एक स्क्रिप्ट है जो कि इस HTML के लोड होने के बाद लोड होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ये सारे स्क्रिप्ट है, ठीक है, बॉडी में। तो यही आपके रिएक्ट स्क्रिप्ट है, अनटिल एंड अनलेस ये स्क्रिप्ट लोड नहीं होंगे, आपका ये पूरा UI फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो एज सुन एज ये एचएल ब्राउजर पे आते हैं, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी जैसे ही ब्राउजर पे लोड होती है, ठीक है, तो ये जब लाइन एग्जीक्यूट करती है इंडेक्स में, रिएक्ट डॉम डॉट हाइड्रेट, अगर हम इसे रेंडर ही रहने देते तो ये क्लाइंट में फिर से बनाता है एक, और अगर हम इसे हाइड्रेट रखते हैं तो ये हाइड्रेट क्या करता है, हाइड्रेट पहले आपके HTML के सारे एलिमेंट्स को मैच करता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं जो कि हमें UI में चाहिए, तो फिर वो ऐड कर देता है। तो ये होता है हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये इसे हम सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं। तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोसेस हुई जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं जितने भी ई कॉमर्स साइट वगैरह हुए,
तो वहाँ पे हमें एसईओ की ज़रूरत होगी तो हम करते हैं। दूसरी बेनिफिट क्या है एसएसआर की, जब हम एसपीए रन करते हैं तो अनटिल एंड अनलेस हमारा पूरा रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी और जो भी रिएक्ट का जो स्क्रिप्ट है वो जब तक ब्राउजर पे लोड नहीं होगा तब तक हम पेज नहीं देख सकते, राइट? तो वो एक परफॉर्मेंस डिले हो जाता है यूजर के लिए। ठीक है, तो यूजर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम सर्वर साइड रेंडर करते हैं ताकि फर्स्ट फर्स्ट बाइट जो है वो हमारा अर्ली आ जाए और फर्स्ट पेंट हमारा अर्ली हो जाए। तो यूजर को वहां पे वो प्रोग्रेस नजर आएगी कि हाँ दिस इज समथिंग हैपनिंग एंड देन ही विल वेट। तो ये होता है हमारा बेनिफिट फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। तो यही हम इस वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मैनुअली अगर हम ये मेंटेन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसके लिए सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए अभी मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा है नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस भी एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। ठीक है, इधर आप देखोगे नेक्स्ट जेएस है और गैट्सबी गैट्सबी जेएस। सो गैट्सबी जेएस में क्या प्रॉब्लम है कि गैट्सबी जेएस इज टाइटली कपल्ड विथ ग्राफ क्यूएल। तो अगर आप ग्राफ क्यूएल के साथ उसे रन करना चाहते हैं तो फिर आप गैट्सबी यूज करो। तो उसके साथ मैपिंग उसकी सही है और वो इट इज बेटर वर्क इट बेटर वर्क्स विथ ग्राफ क्यूएल। बट नेक्स्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस इंडिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंटली आप इसमें बना सकते हो और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट जेएस बनाया, नेक्स्ट जेएस में क्या कर रहे हैं कि आपको जितने पेजेस चाहिए, ठीक है, वो आप पेजेस यहाँ पे डिफाइन कर दो। ये एक नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन है जिसमें कि आप पैकेज में देखोगे तो पैकेज में मैंने सिर्फ क्या किया है, नेक्स्ट नेक्स्ट डाउनलोड किया है, रिएक्ट और रिएक्ट डोम डाउनलोड किया है। ठीक है, और मैंने एक पेज डिफाइन किया है प्रोडक्ट डॉट जेएस। इसमें कुछ है नहीं, शायद मैंने पुश नहीं किया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक पेज बनाना है यहाँ पे, और बाकी जैसे हम कंपोनेंट डिक्लेयर करते हैं कंपोनेंट डिक्लेयर करना है आपको। कुछ भी रिएक्ट रेंडर, रिएक्ट डोम रेंडर, कौन सा मेन ऐप होगा, कौन सा इंडेक्स डॉट जेएस होगा, एचटीएमएल होगा, वो सारे आपको यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप कर देता है। आपको जो पर्टिकुलर पेज चाहिए, आप प्रोडक्ट पेज चाहिए तो आप प्रोडक्ट पेज बनाओ एंड उसका उसका राउट क्या हो जाएगा, आपका लोकल होस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपने एक सर्च पेज बनाया, यहाँ पे आपने एक सर्च पेज बनाया तो सर्च का राउट अपने आप यहाँ पे क्रिएट है सर्च। तो राउट राउट के लिए भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो भी पेज आप बनाओगे वो अपने आप हो जाएगा क्रिएट। तो नेक्स्ट जेएस हम जनरली यूज करते हैं व्हेन जब हमें जरूरत है सर्वर साइड रेंडरिंग के। अदरवाइज हम खुद से चाहते हैं तो खुद से भी इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, रिएक्ट डोम डॉट हाइड्रेट एंड रिएक्ट डॉट रेंडर टू स्ट्रिंग। तो वो मेथड यूज करके हम काम चला सकते हैं। तो ये था एसईओ रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन या कहीं पे कुछ और जो समझ में नहीं आया? हेलो। यस। आशुतोष भैया, आज के लिए रहने दीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ एक हाँ। दो पेज बनाते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स करके, एक छोटे छोटे ऐप्स बनाते हैं तब तक। और आ, ये नेक्स्ट जेएस भी हम्म हम देख लेते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन होगा ना भैया तो कल हम पहले ही आपको हम्म। प्रायर इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वैसे भी नेक्स्ट मतलब कंपोनेंट लाइफ साइकिल, फिर स्टेट स्टेट कैसे चेंज हो रहे हैं, फॉर्म फॉर्म वगैरह कैसे चेंज कर रहे हैं, तो वो सब सारा हाँ, कुछ क्योंकि फिर आगे कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। इतना पहले क्लियर नहीं पहले। होगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे का, ये सब जो हम्म। साइकिल है। हाँ 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 हाँ। हम्म। ठीक। ठीक है, तो फिर यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है भैया। ओके। थैंक्स। ओके, ठीक है, ओके। बाय 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 एवरीवन। थैंक यू। हेलो। हाँ भैया। अब आपका माइक ऑन करो। क्या हाल है सबका?
सो के उठा है क्या? नहीं। ऐसा आवाज से लग रहा है ना कि वो सो के उठा है। कौन कौन सोया था? नहीं सोए थे। ऐसा झूठ काय बोल रहे हैं? दोनों बगल में है क्या गौतम अजीत? नहीं भैया, कहाँ बगल में नहीं। अच्छा क्या क्या समझ में है ये बताओ। हेलो। हाँ भैया। हाँ पूछे, कुछ पूछे, हम बताएगा जवाब दो। हाँ भैया फिर पूछिए। अगर कुछ